The Dahua HD CVI technology has been leading the HD over coaxial industry's development since its first launch 8 years ago. In 2019, Dahua introduced a brand new HD CVI 6.0 technology equipped with 4K real-time, AI, etc., achieving clarity, abundance and understanding in monitoring. This year, HD CVI AI unveiled a series of competitive products from entry-level to high-end, realizing inclusive AI. Perimeter protection realizes intelligent analysis based on tripwire and intrusion. SMD Plus was upgraded with filters for humans and vehicles through traditional motion detection in order to reduce false alarms and improve alarm accuracy. The system can link with an active deterrence camera. When intrusion is detected, it turns on white light, alarm sound, etc. to deter and drive away intruders and eliminate potential danger. The Dahua SMD Plus empowers all channels on XVR with AI functions. Users can enable this feature with just a simple click. No extra configuration is required, making it easy to control. Through comparison of face images with the user-defined face image database, face recognition can quickly search for the target and provide warnings or alarms on suspects or strangers. Metadata search supports feature extraction of people, motor and non-motor vehicles. It can be used for quick search and effectively narrows down the search scope of the target. Users do not have to worry about the reliability of analysis even at night. The full-color camera provides 24/7 hours clear-colored images that show attributes of targets. HD CVI 6.0 realizes industry-leading 4K real-time technology through Dahua's self-developed chipset. Videos with 4K at 25-30 frames per second does not only bring a smoother visual experience, but also restore the monitored scenes more accurately, providing the user with more reliable monitoring. AI coding technology preserves the key objects in the image, ensures the accuracy of subsequent image recognition, and further compresses videos, thus saving bandwidth and storage cost for users. Two-way talk achieves voice intercom between monitoring centers and scenes, and effectively improving the management center's control over the monitored scenes. In addition, videos with audio information can provide complete and objective evidence after the event. We believe that the advent of HD CVI 6.0 technology can inject a new development vitality into HD over coax industry. As a leader, Dahua will always be committed to technological innovations and bring more benefits to customers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं दावा का पाकिस्तान में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है, जो वीकली हमने सिलसिला शुरू किया है, उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एचडी सीवीआई की जो है ना 6th जनरेशन प्रोडक्ट्स। आपको जैसे पता है कि एचडी सीवीआई दावा की जो है पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एचडी सीवीआई का मतलब क्या है ये समझेंगे, उसके बाद 6.0 में क्या क्या फंक्शंस और फीचर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लीडिंग ओवर क्वाइग्स एआई एवोल्यूशन जो है ना प्रोडक्ट्स जनरेशंस वाइज जो है ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एचडीसीवीआई के हम देखें कि एचडीसीवीआई है क्या। जो लोग नहीं जानते एचडीसीवीआई प्रोडक्ट्स को या एचडीसीवीआई टेक्नोलॉजी को, और अभी तक उनको ये नहीं पता कि एचडीसीवीआई है कि किस चिड़िया का नाम, तो उनके लिए है कि हाई डेफिनेशन कंपोजिट वीडियो इंटरफेस। कंपोजिट कहते हैं मजमुआ, सिग्नल्स का मजमुआ। एक सिग्नल जो केबल के अंदर जो ट्रेवल कर रहा होता है, कोएक्सियल केबल के अंदर या सीसीटीवी केबल के अंदर, उसमें आप 4 सिग्नल जो है एक ही केबल में ट्रांसमिट कर सकें। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें आपका वीडियो हो सकता है, उसमें ऑडियो हो सकता है, डाटा हो सकता है, पावर हो सकती है। और कोएक्सियल ओवर ऑडियो जो है इस वक्त दावा का सबसे बड़ा बेनिफिट है और जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। और इसके ऊपर पाकिस्तान में भी हम काफी अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे बिल्ट इन माइक वाले कैमराज हैं और जो हमारे जो लो एंड से लेकर हाई एंड प्रोडक्ट्स तक जो है सारे डीवीआर जो है सपोर्ट करते हैं कोएक्सियल ऑडियो का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है एचडीसीवीआई में जो फंक्शंस हैं उसमें ये है कि हाई रेजोल्यूशन अप टू 4K कैमराज अब अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है अप टू 1.2 किलोमीटर फॉर 2 मेगापिक्सल, ठीक है।
और अगर 4K की बात करें तो हम 300 से 350 मीटर तक 4K कैमरे को भी ट्रांसमिट इजीली कर सकते हैं। और यूटीपी की बात करें तो 2 मेगापिक्सल को हम 450 से 500 मीटर तक हम थ्रो कर सकते हैं। उसकी जो पावर का जनरेशन है जो, ठीक है, उसको पावर देने के लिए ऑडियो वीडियो का सिग्नल जो है वो हम 450 मीटर तक कर सकते हैं। अगर हम 4K की बात करें उसमें तो हम 200 से 250 मीटर तक 4K यूटीपी पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो HDCVI या एनालॉग जो हमारी डिजिटल एनालॉग टेक्नोलॉजी है, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो सीमलेस अपग्रेड होती है। आपकी जो ओल्ड एनालॉग टेक्नोलॉजी के कैमरास लगे होते हैं उनको भी आप अपग्रेड करके जो है हमारे एग्जिस्टिंग जो है ना, जो नया सेटअप लगाएंगे डीवीआर का, उसके अंदर जो है पेंटाबर्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। सीवीआई कैमरा हो चाहे वो ओल्ड, चाहे वो AHD कैमरास हो, TVI हो, CVPS हो या IP कैमरास हो, तो प्लग एंड प्ले जो है आपके पास पेंटाबर्ड की ऑप्शन अवेलेबल होगी HDCVI में, ठीक है। ये हमारा सफर है HDCVI डेवलपमेंट कैसे हुई हमारी, 2012 से हमने ये जर्नी शुरू की है, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो है हमने इसके अंदर प्रोडक्ट्स, फीचर्स, फंक्शंस और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो और उनकी स्टडी के मुताबिक जो है प्रोडक्ट रिलीज कराई हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो असल सिलसिला जो शुरू हुआ है प्रोडक्ट, जिसमें इंटेलिजेंट डिवाइसेस और जो है हाई रेजोल्यूशन डिवाइसेस, वो हमारा 2017 में हुआ है। 2017 में हमने फर्स्ट 4K डीवीआर और 4K कैमरा जो है लॉन्च किया था अल्ट्रा सीरीज के अंदर, हाई एंड सीरीज के अंदर, ठीक है। लेकिन अब तो हमारे पास HDCVI 6th जनरेशन, तो हमारे पास लाइट सीरीज में भी 4K ऑप्शन अवेलेबल होगी, ठीक है। HDCVI जो 5.0 थी उसके अंदर हमारे पास क्या हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस कराए थे जो लास्ट ईयर तक हमने यूज किए हैं, वो है AI फंक्शंस थे कुछ हमारे पास बेसिक, ठीक है। उसके बाद एक्टिव डिटेरेंस कैमरास थे जिनके अंदर बिल्ट इन सायरन की हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद स्टारलाइट और फुल कलर बहुत जाके एंड में जो है 5.0 के जो लास्ट ईयर का जो एंड था उसके अंदर हमने लॉन्च किया था, और जो है वो जीनत पन है 2020 की, तो उसको भी हमने 6.0 के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। HDCVI 6.0 क्या है, 6th जनरेशन में क्या क्या की जो है फंक्शंस रखे गए हैं, क्या क्या की टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। एज वी ऑल नो कि जो है दावा की जो सबसे बड़ी जो एडवांटेज होती है वो ये होती है कि मार्केट की ट्रेंड को स्टडी करे, कि जो है एक जो मार्केट में जो रेजोल्यूशन का एक दौर आया था कि फॉर एग्जांपल 2017 में 1 मेगापिक्सल जो है ना एनालॉग टेक्नोलॉजी में बहुत पॉपुलर हुआ, जिनमें हमारे 1000 RP और जो 1100 RP थे वो जो है ना बहुत फेमस हुए, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऐसा जो है 2 मेगापिक्सल ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। उसके बाद अब 4 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल ने जगह ले ली। तो अब लोगों का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, हाई डेफिनेशन जो UHD डिस्प्ले की तरफ आ रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरास की तरफ आ रहे हैं। तो हमने एनालॉग टेक्नोलॉजी में जो हमारी जो 6th जनरेशन के प्रोडक्ट्स है उसमें हमने 4K रियल टाइम, धावा इज द ओनली कंपनी एंड द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट दिस इनिशिएट के जो है हम 4K को रियल टाइम एनालिसिस तक की हम जो है परफॉर्मेंस आपको दें कि जो है 30 FPS तक फुल 4K रेजोल्यूशन ट्रांसमिट भी हो और आपको व्यूइंग भी मिले उसकी, ठीक है। दूसरा की फंक्शन क्या है इसमें हमने जो रखा है वो है इनहांस्ड AI फंक्शंस, उनके एल्गोरिदम को बेहतर किया, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, उसको बेहतर किया हमने, ठीक है। ये हमारी जो है 6.0 की प्रोडक्ट का हिस्सा होगी, ठीक है। तीसरा की फीचर जो है वो हमने H.265 की तरह का एक कंप्रेशन या कोडेक जो है इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर, जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि जो H.265 में इनकोडिंग हो रही होती है उससे बेहतर धावा का सेल्फ डेवलप AI कोडिंग, वो मैं आपको समझाऊंगा आज के सेशन के अंदर। और जो लास्ट और की फंक्शन होगा HD6 जो 6.0 है उसके अंदर हमारे पास 2-वे टॉक वाले कैमरास, मतलब कि पहले होता था कि बिल्ट इन माइक वाले कैमरास, अब हमारे पास एनालॉग के अंदर HDCVI 6.0 के अंदर प्रोडक्ट लाइन के अंदर ड्यूल ऑडियो वाले भी सपोर्टेड होंगे, जिसका मतलब ये है कि माइक तो होगा जैसे पहले होता था, अब उसके अंदर हमने स्पीकर भी ऐड कर दिया ताकि आप कम्युनिकेट भी कर सके। आप रियल टाइम सीन के अंदर किसी से ब्रॉडकास्ट मैसेज किसी को भेजना है, आप साइड पे किसी को मतलब के वार्निंग देना चाहते हैं, तो आप इनेबल करके जो है उसको 2-वे टॉक कर सकते हैं फंक्शन कैमरा से DVR के बीच में, ठीक है। पहले ये 1-वे होती थी कि आप सिर्फ सुन सकते थे लेकिन बात नहीं कर सकते थे। ये हमारे की फंक्शंस होंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि 4K रियल टाइम में प्रोडक्ट्स क्या हमारे पास, इसको किस तरह से मैं ब्रीफ करूंगा अपने उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। 4K रियल टाइम का क्या मतलब है, 4K रियल टाइम का मतलब ये है कि रियल टाइम होता है किसी भी चीज के अंदर कोई डिले ना हो, ठीक है, लिटेंसी ना हो, ठीक है।
25 FPS अगर होंगे किसी भी वीडियो के अंदर तो ये रियल टाइम आपको वीडियो नजर आएगी, मतलब इसमें कोई डिले नहीं होगा, इसमें कोई ब्लरनेस नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई लेटेंसी नहीं होगी, ठीक है। और जो है ये आपके सीन की जो विजुअलिटी है, जो विजुअल एक्सपीरियंस है उसको फ्लुएंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अब धावा के पास 4K रियल टाइम जो है, जो लोग सवाल करते थे बार बार कि 4K रियल टाइम अगर फुल रेजोल्यूशन पे किसी डीवीआर को हमने यूज करना है तो वो कौन सा डीवीआर होगा, अब हमारे पास वो XVRs अवेलेबल होंगे, ठीक है। ओह वाओ, व्हाट, सीरियस कि 4K एनालॉग टेक्नोलॉजी में वो भी रियल टाइम। 4K रियल टाइम की की फीचर्स क्या होंगे कि धावा की सेल्फ डिवेलप्ड चिपसेट है, ठीक है। तो हम जो है इसको जो है मॉडिफाई, इसकी जो R&D है वो जो है कस्टमाइज हम खुद देख रहे हैं, इसकी सारी क्वालिटी इंश्योरेंस को हम खुद इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ डिवेलप्ड चिपसेट है, इसके लिए किसी के हम मोहताज नहीं है कि हम चिपसेट सेंसर किसी से लें, फलानी चीज किसी से लें, तो सारी की सारी जो इन हाउस बिल्ड हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है, पहले हमारे पास 4K जो है 15 FPS तक सपोर्टेड थे, अब वो फ्रेम पर सेकंड हमने डबल कर दिया, 25 यानी पॉल में और NTSC में आपके पास 30 FPS। एक बात का याद रखिएगा कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं 30 FPS क्यों नहीं दिखाता, लेकिन पाकिस्तान में जो टेलीविजन जो सिस्टम हमारे पास जो स्क्रीन्स लगी होती हैं वो पॉल पे चलती हैं ज्यादातर, तो पॉल में जो है हमारे पास जो टेलीविजन सिस्टम है उसमें 25 FPS से ज्यादा नहीं चलते, ठीक है। अगर कहीं पर आप टेंडर में हैं और वो कहते हैं कि जी 30 FPS हमें डेमो करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, धावा की टीम से रब्ता कर सकते हैं कि आपको NTSC वाला वर्जन दें, ताकि जो है आप डेमो के दौरान जो है उसको पास ऑन करा सके 30 FPS पे रियल टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है इसका क्या फायदा है 4K का, आपको सबको पता है कि इसकी रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल से 4 टाइम ज्यादा है। 4K रेजोल्यूशन आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन देती है और इमेज के अंदर जो टाइनी डिटेल्स है वो भी आपको क्लैरिटी के साथ नजर आती है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 1800 सीरीज ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी हुई है, ठीक है, और इसमें बिल्ट इन माइक वाले भी कैमरास अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, 1800 सीरीज है एक, ये फुल 4K है, और एक है हमारे पास 1801, वो जो है 4K एट द रेट 15 FPS, यानी नॉन रियल टाइम 4K रेजोल्यूशन पूरी होगी लेकिन 15 FPS पे है, ठीक है। उसमें आपको लेटेंसी थोड़ी सी नजर आएगी। इसका लेटेंसी का क्या मतलब होता है कि अगर आप जो है फास्ट मूविंग चीज देखेंगे तो सीन में गुजर जाएगी, कैमरे में बाद में आएगी, तो ये एक डिफरेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, XVR कौन सा हम यूज करेंगे, 7000 सीरीज का करेंगे, और 4K जो हमारा जो है I2 सीरीज है ये जो है इंप्लीमेंट होगी 4K फुल रेजोल्यूशन के ऊपर। 4K आपको 25 FPS पे लाइव व्यू देगी, और रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमारे पास 4K जो है 15 FPS पे रिकॉर्डिंग होगी उसकी, लेकिन लाइव व्यू हम कमिट कर रहे हैं सारी पोर्ट्स के ऊपर 25 FPS पे। तो ये चीज जो है एक एवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन होगी इंडस्ट्री के लिए कि 4K हम जो है कोएक्सियल, स्टैंडर्ड कोएक्सियल केबल पे, इसके लिए कोई मैंने ये नहीं कहा कि आपको कोएक्सियल केबल चेंज करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी, ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर्स करती है, जहां पर आपकी जो स्ट्रक्चर होता है केबल का उसमें आपके पास डिफरेंट अब चीजें आ गई हैं कि कंडक्टर की थिकनेस होती है, उसमें केबल की शील्डिंग आ गई, ठीक है, ये चीजें तो मैटर करती हैं, लेकिन जो है आप जो एग्जिस्टिंग आपकी कोएक्सियल केबलिंग हुई होती है उसके ऊपर भी आप 4K कैमरास चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फुल के 4K। इसी के साथ हमारे पास जो 4KL वाले मॉडल थे उसमें हमने अपडेट ये किया कि 4KL-I2, यानी आई का मतलब क्या होगा, जो I2 आपको नजर आ रहा है I2 सीरीज, I2 का मतलब कि इसमें AI फंक्शंस भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन ऑफ AI प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब जो है 4KL का मतलब ये होगा कि 4K नेटिव रेजोल्यूशन पे 25 FPS सपोर्टेड है लाइव व्यू में, और नेटिव रेजोल्यूशन पे 15 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये DVR जो है हमने अपडेट किया 15 FPS पे। पहले क्या होता था, जो 4KL वाले जो नॉर्मल वाले हैं 4KL-X या 4KL सिंपल, उसमें क्या होता है 4K जो रेजोल्यूशन है हमारी वो 7 FPS नेटिव रेजोल्यूशन पे सपोर्टेड होती है सारी की सारी पोर्ट्स पे, ठीक है। अच्छा, फुल कलर के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मार्केट का हिस्सा ऑलरेडी बन गया, और जो है ये HDCVI 5.0 का बेसिकली हिस्सा था, ठीक है। तो फुल कलर का क्या मतलब है कि आपको डार्कनेस में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं मिलेगी, आपको उसके अंदर हमने वार्म लाइट जो है ऐड कर दिया, और आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है मजीद ब्राइटर हो जाएगा आपकी नाइट के अंदर, और कलरफुल इमेजरी आपको नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, कलरफुल इमेज और AI का बड़ा अच्छा लिंकअप है हमारे साथ। वो क्यों कि आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट में जब AI फंक्शंस इंप्लीमेंट करते थे वो बता तो देता था ह्यूमन है या व्हीकल है, लेकिन
अब क्या है कि एआई फंक्शंस क्योंकि हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं पता कि जो है ना उसने बंदे ने टी शर्ट किस कलर की पहनी है, पैंट किस कलर की पहनी है, उसकी जो विजुअल चीजें हैं उसकी डिटेल हमने नहीं, हमें कलरफुल जो इमेज डिटेल आनी चाहिए थी वो नहीं आती थी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आईआर वाले कैमरास पे। अब उसके लिए हमने जो है ये किया कि फुल कलर को हमने एआई फंक्शंस के साथ भी ऐड ऑन किया है, ठीक है। सेकेंड जो हमारी टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है वो है इन्हांस्ड एआई फंक्शंस। एआई फंक्शंस में हमने क्या डेवलपमेंट किया है, एल्गोरिदम्स को बेहतर क्या किया हमने, क्या क्या फंक्शंस आपको मिलेंगी जो डैश i2 सीरीज हैं, उनके जितने भी डीवीआरस आपको मार्केट में आप नजर आएंगे उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इन्हांस एआई फंक्शंस में हमने जैसे लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था जब हम विज सेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि विज सेंस के जो डीवीआर होंगे उसके ऊपर हम आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। जो विज सेंस के जो डीवीआर हैं वो एसएमडी प्लस आपको दिखाते हैं, देते हैं फंक्शन, पैरामीटर प्रोटेक्शन देते हैं, फेस रिकग्निशन देते हैं, और मेटा डेटा सर्च भी इसके अंदर एक फंक्शन ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास जो SMD प्लस था वो पहले जो एक्स सीरीज था उसके अंदर भी होता था, लेकिन चिपसेट जो है वो पुरानी थी, उसमें प्रोसेसिंग की कैपेसिटी जो थी वो कम थी, ठीक है। अब हम क्या करें, जो i2 सीरीज है उसके अंदर हमने छोटा सा AI बेस्ड प्रोसेसर लगा दिया है। बोर्ड तो है ही है, लेकिन एक्सटर्नल हमने एक चिपसेट छोटी सी मॉड्यूल लगा दी AI बेस्ड, जिससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी जो है वो अप टू 95 टू 99% तक जा सकती है ह्यूमन और व्हीकल के ऊपर। फेस रिकग्निशन की कितनी एक्यूरेसी इस चिपसेट से जाएगी, वो है आपके पास तकरीबन 95 टू 96% तक फेस रिकग्निशन, ठीक है। इसी तरह मेटा डाटा में क्या है कि फेस जो रीड होगा उसकी डिटेल बताए, जैसे ऐनक पहनी हुई है, ठीक है, ग्लासेस है लगाई हुई है, मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, इसी तरह जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है, तो ये मेटा डाटा होता है, ठीक है। हर फंक्शन की अपनी एक स्पेसिफिक नीड है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफली नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने डिटेल में बिल्कुल पढ़ा था विज सेंस के लेक्चर के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फेसबुक पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, धावा टेक्निकल इंजीनियर में, और धावा के जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं रिलैक्स होके, और उस पर डिटेल में मैंने बताया एसएमडी फंक्शन, पैरामीटर प्रोटेक्शन, फेस रिकग्निशन और मेटा डाटा सर्च, ठीक है। लेकिन मैं एक एक स्लाइड आज भी ऐड करूं ताकि जो है ना जो नए लोग हों उनके लिए जो है आसानी हो जाए समझने में, कैचअप करने के लिए, ठीक है। SMD प्लस क्या है कि जो हम नॉर्मल रूटीन में जो मोशन डिटेक्शन यूज करते थे, अब मोशन डिटेक्शन में क्या होता था कि पूरे सीन में कोई भी हिलजुल होती है, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, दरख्त है, ठीक है, इसके अलावा पेट्स हैं, कोई मक्खियां उड़ रही हैं, मच्छर उड़ रहे हैं, तो इसकी थ्रेशोल्ड को जब टच करते थे वो तो अलार्म आ जाता था। हमने स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, दावा इज द ओनली कंपनी जिसने मोशन डिटेक्शन के एल्गोरिदम को जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्टेबल कर दिया, जिससे क्या होगा कि जो फॉल्स अलार्मिंग है वो खत्म हो जाएगी, और सिर्फ ह्यूमन और व्हीकल जो कि आपकी नेसेसरी सीन का हिस्सा है, जो सीन में आपको रिकॉर्डिंग किस चीज की चाहिए, वो जो है आपके पास अवेलेबल कर दिया दावा ने स्मार्ट मोशन डिटेक्शन की फंक्शन के तौर पे। किसी का कोई सवाल है? प्लीज माइक अगर म्यूट कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो एआई चिपसेट के साथ क्या कर रहे हैं हम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम कर रहे हैं ऐड, तो उससे क्या होगा कि ह्यूमन और व्हीकल की फिल्टर आउट करके रिकॉर्डिंग करेगा, बाकियों को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। तो आपकी स्टोरेज की जो इम्पैक्ट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि 2 TB में अगर पहले 15 दिन की हो रही थी, आप SMD सारे चैनल पे लगा के, आपको चाहिए यही ना, आपको ये तो नहीं चाहिए कि जो है ना बिल्ली कुत्ता जो पत्ते हिल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो, बारिश हो रही हो तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। तो आपको इस चीज से सारा जान छुड़वाने के लिए आपको SMD फंक्शन हमने दे दिया, ऐड कर दिया हमने AI बेस्ड जो हमारे XVRs हैं, ठीक है, उसके अंदर i2 के अंदर भी अवेलेबल है, आई के अंदर भी अवेलेबल है। आई हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान की मार्केट में, जो आई वाले XVRs हैं ऑलरेडी, उसमें SMD प्लस पैरामीटर प्रोटेक्शन और जो है फेस डिटेक्शन का फंक्शन अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो है SMD की जो है एक्यूरेसी जो है उसकी बात करूं तो 95 टू 96% तक हम ले सकते हैं ओपन इन्वायरमेंट में भी, ठीक है। और चैलेंजिंग हार्श इन्वायरमेंट में भी हमने इसकी टेस्टिंग की है, तो इसका जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये जो ड्रामेटिकली आपकी जो है हार्ड ड्राइव को सेव करेगा, ठीक है, और अलार्म्स देगा जब आपको ह्यूमन और व्हीकल का कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो मोबाइल के साथ भी लिंक अप इसको कर सकते हैं हम। अच्छा, पैरामीटर प्रोटेक्शन भी उसी का हिस्सा ही है SMD का, लेकिन
SMD जब आप इनेबल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरे सीन के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो वो डिटेक्ट करता है, चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे वो व्हीकल की हो, ठीक है। लेकिन पैरामीटर प्रोटेक्शन में आपको रूल बनाना पड़ता है, जैसे ट्रिप वायर, लाइन क्रॉसिंग, ठीक है, लाइन बना दी आपने, इधर से कोई ह्यूमन क्रॉस करे तो अलार्म आ जाए, ये पूरे सीन पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ लाइन के ऊपर है। जैसे ही ये लाइन क्रॉस होगी तो अलार्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही SMD वाला फंक्शन रखा हुआ है, लेकिन क्या है, रूल्स के साथ, कि जो है जैसे ही ह्यूमन जो है इसको या गाड़ी इसको टच करे इस लाइन को तो आपको अलार्म मिल जाए। बाकी जो ट्रेडिशनल IVS में आपको चैलेंजेस आते थे, जैसे आप बाउंड्री वॉल पे लाइन क्रॉसिंग बनाते थे, चाहे वो IP हो चाहे वो एनालॉग हो, उसमें क्या होता था कि बारिश हो रही है, लाइट अचानक ऑन हुई, वो अलार्म आ जाता था। इसी तरह बिल्ली कुत्ता कोई भी चीज वहां से गुजरती थी तो वो अलार्म दे देता था, ठीक है। तो अब क्या है कि वो फिल्टर आउट कर देगा, फॉल्स अलार्म अलग कर लेगा, और जो पैरामीटर प्रोटेक्शन के अंदर जो हमारे पास दो फिल्टर अवेलेबल है, दोनों एट ए टाइम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप अगर सिर्फ ह्यूमन वाली जगह पे, जहां पे ह्यूमन है गाड़ी, अब ये जो हमने इस सीन के अंदर देख रहे हैं, ये यहाँ पर गाड़ी तो नहीं आ सकती ना, ये तो ह्यूमन के लिए है, तो ह्यूमन फिल्टर लगा देंगे तो ये ह्यूमन के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं माइक पर आकर। हैज एनीवन एनी क्वेश्चंस? आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप किसी का कोई सवाल हो यहां तक? सही जा रहे हैं? ओके, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। विक्रम साहब, कोई सवाल है आपका माइक पर? ओके, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है तो वी आर गुड टू गो। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर वो है फेस रिकग्निशन। I2 वाली जितनी भी सीरीज हैं, चाहे वो सिंपल I2 हो, चाहे वो 4KL-I2 हो, चाहे वो 7000 4K-I2 हो, सब के अंदर जो है दो चैनल फेस रिकग्निशन के आपको मिलेंगे। फेस रिकग्निशन एनालॉग टेक्नोलॉजी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, आप ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप जो है फेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं, सिर्फ डिटेक्ट नहीं। आपके पास DVR के अंदर डेटाबेस बनेगी, तकरीबन ये 10,000 से 20,000 तक के मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। वो मॉडल्स मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ, ये वाली स्लाइड में, लेकिन पहले ब्रीफ कर दूं कि फेस रिकग्निशन किस तरह से काम करता है। पहले क्या होता था, फेस डिटेक्ट करके अपने पास स्टोरेज में रख लेता था, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास जो है इसके अंदर फेस जो है कैप्चर होगा, उसके बाद वो मॉडलिंग होगा, उसके बाद वो कैप्चर होके अपनी डेटाबेस में देखेगा ये बंदा इसमें अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, ठीक है। अगर अवेलेबल होगा तो उसमें क्या करेगा, वो आपको जो है अलार्म दे देगा, ठीक है। अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो स्ट्रेंजर दे देगा आपको। अगर उसमें डेटाबेस में मौजूद होगा तो वो बता देगा कि इतने % इसका इस डेटाबेस से मैच हो गया ये फेस, ठीक है। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में प्रीव्यू ले सकते हैं, अलार्म भी ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी स्टाफ है जैसे उसकी डेटाबेस बना सकते हैं, ब्लैक लिस्ट है या कोई इस तरह की लिस्ट है जो आपको सस्पिशियस लोगों की, क्रिमिनल्स लोगों की, ठीक है, उनकी डेटाबेस के अंदर पिक्चर डाल सकते हैं। और जैसे ही वो कैमरे के सामने, और ये कोई HDCVI कैमरे का फंक्शन नहीं बता रहा, ये हमारे XVR का फंक्शन है। हमेशा याद रखें कि HDCVI टेक्नोलॉजी में कभी भी कैमरा इंटेलिजेंट नहीं होता, इतना स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ आ सकता है, जैसे अलार्म आ जाता है बिल्ट इन सायरन वाला, जैसे मैंने आज बताया कि इसमें बिल्ट इन माइक वाले कैमरास होंगे, उसमें स्पीकर भी लगा दिया, ठीक है। उसके साथ जो है कैमरे के अंदर मजीद क्या हो जाएगा, मोशन डिटेक्शन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा एनालॉग कैमरे में कोई और फंक्शन नहीं होते बिल्ट इन, ठीक है। उसके सारे के सारे फंक्शन हम इंप्लीमेंट करवाते हैं XVR से। XVR में अगर कोई फंक्शन अवेलेबल है आप जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी कैमरे पे, और वो सिर्फ HDCVI पे नहीं, हमने इसको थर्ड पार्टी कैमरास के साथ भी चला के देखा है, इट कैन वर्क इजिली, ठीक है। क्योंकि इसको सिर्फ स्ट्रीम चाहिए, और वो स्ट्रीम किसी भी कैमरे की हो सकती है, चाहे वो कोई XYZ ब्रांड का कैमरा हो, चाहे वो धावा का कैमरा हो, ठीक है। आप जो है उसके ऊपर जो है AI फंक्शन इनेबल कर सकते हैं, जो हमने आज देखे हैं। ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं। आपका कोई सवाल है? जी सर। सामने को वालेकुम अस्सलाम। उबैद,
अच्छा उबैद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेटाबेस है, क्या हम अपनी तरफ से भी डेटाबेस XVR में डाल सकते हैं, कि या वही डेटाबेस होगी जो कैमरा इटसेल्फ लेके XVR में सेव करेगा, फिर उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा जब दोबारा कभी वो फेस सामने आएगा, या हम अपनी एक डाटा शीट या अपने वो एक डेटाबेस बना के वो अपलोड कर दें XVR में, देन वो इसको खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा? सर डेटाबेस ऐड कराने का फंक्शन ही यही होता है कि आप जो है इसमें इनरोल करवा सकते हैं। वो दो तरीकों से हो सकती है, आप यूएसबी लगा के भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको जो है ना ज्यादा लोग हैं तो आप ये करेंगे कि एक एक दफा सबको जो है ना लाइव व्यू से गुजारेंगे और लाइव व्यू के अंदर वन क्लिक में आप वो ऐड टू डेटाबेस कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हाँ, जो डेटाबेस बनाएंगे उसकी पिक्चर मैच होगी कंपैरिजन के लिए, जो डेटाबेस में नहीं होगा उसको वो स्ट्रेंजर मार्क कर देगा। स्ट्रेंजर का आप अलार्म भी इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस बात करें, डाटा सेंटर में हर बंदा नहीं आ सकता, ठीक है। वहां पे अगर हम ये कैमरा लगा दें और डीवीआर लगा दें, ठीक है, तो जो रिकग्नाइज होगा वो सिर्फ उस एरिया में आ सकता है। बाकी जो है वो स्ट्रेंजर मार्क करेगा। स्ट्रेंजर का अलार्म कुछ भी करा सकते हैं उसके साथ, रिले के साथ आप ट्रिगर, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। अब जो है हम बात करते हैं मॉडल्स की। मैंने आपको बताया विजसेंस की कल हमने जो है ना डिटेल में प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें तीनों मॉडल्स की हमने परफॉर्मेंस देखी थी। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि जो है जो लोग नए हैं उनका भी वो भी कैचअप कर सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। 5000-i2 जो सिंपल है, ठीक है। सिंपल से मुराद ये है कि जो जो 4K और 4K के बगैर है उसके अंदर सारे के सारे चैनल्स पे 5 मेगापिक्सल उसी तरह चलेगा जैसे एक्स सीरीज में चलता है, ठीक है। फंक्शंस क्या आपके पास अवेलेबल होंगे, वो है 2 चैनल फेस डिटेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर जो है 2 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन। इसके अंदर और है, और से मुराद है या 2 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन चला लें या 2 चैनल आप फेस डिटेक्शन चलवा लें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, वो ये कि जो 4 चैनल वाला होगा उसमें 2 चैनल फेस डिटेक्शन नहीं है, उसमें 1 चैनल फेस डिटेक्शन है और 1 चैनल पैरामीटर है। सिर्फ 4 वाले में, 8 वाले में और 16 वाले में 2-2 है, ठीक है। और इसकी जो रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं वो क्या है, 5 मेगापिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन। नेटिव रेजोल्यूशन का मैंने आपको बताया हुआ है, हॉरिजेंटल का हाफ हो जाता है और वर्टिकल पिक्सल्स वही रहते हैं जो एक्चुअल रेजोल्यूशन में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नया मॉडल है वो है 4K-i2, जिसमें नेटिव रेजोल्यूशन पे 30 FPS पे आप फुल लाइव व्यू ले सकते हैं सारी पोर्ट्स पे, ठीक है। और 15 FPS पे आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं नेटिव रेजोल्यूशन पे, ठीक है। अगर आप फुल रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है 7 FPS पे, ठीक है। रेजोल्यूशन पूरी होगी लेकिन FPS 7 होंगे उसमें, ठीक है। इसके अंदर भी आप सारे चैनल्स के ऊपर या SMD चला लें या 2 चैनल पे पैरामीटर चला लें या 2 चैनल पे फेस रिकग्निशन। फेस रिकग्निशन इज समथिंग कि जो आपको इस वक्त मार्केट में प्रमोट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं एनालॉग सिस्टम में आपका सिर्फ डीवीआर अपडेट होगा, डीवीआर सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी कैमरे भी दावा के लगे हुए हैं या जो भी लगे हुए हैं, कोएक्सियल नेटवर्क भी वही रहेगा, कोई केबलिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने जस्ट प्लग करना है और आपका फंक्शन फेस रिकग्निशन का इनेबल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद 4K जब हम फुल रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे तो उसमें 30 FPS फुल रेजोल्यूशन लाइव व्यू और 4K फुल रेजोल्यूशन 15 FPS पे रिकॉर्डिंग। ये फंक्शन आपको 4K वाले सीरीज में मिल सकते हैं, ठीक है। और 2 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन और 2 चैनल उसी तरह फेस रिकग्निशन की। सिर्फ रेजोल्यूशन आपको फुल FPS पे मिलेगी। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त हो गया काम कि फेस रिकग्निशन है एनालॉग में। वाह। ओके, अब बात करते हैं एआई कोडिंग की। एआई कोडिंग की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे पास कंप्रेशंस होती थी। कुछ कंप्रेशंस में क्या क्या होता था, H.264, H.265। कंप्रेशन क्या होती है कि अगर रॉ फॉर्मेट में डीवीआर रिकॉर्डिंग शुरू कर देना तो उसके अंदर जो है स्टोरेज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप को हार्ड ड्राइव ही सिर्फ मतलब कि 2-3 दिन के लिए भी 4-4 TB 5-5 TB लगानी पड़ेगी। अगर रियल सही रॉ मटेरियल जिसमें कोई वो ना हो, मिक्स एंड मैच ना हो रेजोल्यूशन का, ठीक है, कोई घपला ना हो, इमेज क्वालिटी कंप्रोमाइजिंग ना हो या कुछ भी ना हो, ठीक है, तो वो रॉ फॉर्मेट में होती है वीडियो। जैसे आप अगर DSLR यूजर हैं, DSLR में एक ऑप्शन आता है रॉ फॉर्मेट, वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वो एक्चुअल साइज से भी बड़ी होती है। जो रिकॉर्डिंग के बाद आप सेव करते हैं ना MP4 AVI, ये कोडैक है।
ये कंप्रेशंस है इसकी, ठीक है। कोडेक्स है जिसके अंदर वो अपनी आपको सेव करता है ताकि जो उसका साइज है, क्वालिटी है, ऑडियो है, वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक आ जाए, उस कंप्रेशन के या कोडेक के, ठीक है। इसी तरह कैमराज में भी यही होता है, जो डीवीआर होते हैं उसमें भी यही होता है कि H.264, H.265 क्या करते हैं कि जैसे हम किसी बड़ी फाइल को जिप फाइल बना के जो है सेंड करते हैं किसी को, ये भी यही करता है कि कंप्रेशन करता है और जो है उसको स्टोरेज को मिनिमाइज करता है, बैंडविड्थ को कम करता है उसकी, ठीक है, ताकि जो है स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हो सके। एआई कोडिंग क्या है? आप एआई कोडिंग का मैं फिर दोबारा से अगर बताऊं, एसएमडी बेस्ड कोडिंग करना किसी भी चीज की। जैसे मैं बात कर रहा था कि हम जो है अब कर रहे हैं ह्यूमन और व्हीकल बेस्ड मोशन, तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि हम व्हीकल और जो फेस है उसको जो है फुल रेजोल्यूशन पे और फुल बिट रेट के ऊपर रिकॉर्ड करें, और जो बाकी स्टैटिक इमेज है, स्टैटिक इमेज क्या, बैकग्राउंड, जैसे आपका रोड है, ये बैकग्राउंड है कैमरे के लिए, ये मूव तो नहीं होना ये कभी भी, ठीक है। इसी तरह जो दरवाजा है ये मूव नहीं होना कभी, मतलब कि दीवारें हैं ये मूव नहीं होनी। तो इसकी रेजोल्यूशन को, स्टैटिक इमेज की रेजोल्यूशन को डाउन करके हम जो हमारा जो असल मकसद था जो व्हीकल और ह्यूमन, उसको जो है फुल विदाउट एनी कंप्रोमाइजिंग हम फुल जो है कैपेसिटी के ऊपर इनकोड कर सके और उसका जो टारगेट है टारगेट बेस्ड इनकोडिंग करवा सके, ठीक है। ये हमारी कंप्रेशन है, ये धावा की सेल्फ डेवलप एआई कोडिंग टेक्निक है, ठीक है। Oh, tell me how it works. फंक्शन तो बता दिया एआई कोडिंग यार, कि जो है अब मैं बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन और व्हीकल जो है सीन के अंदर इनकोड हो, बाकी स्टैटिक जो है चीजें जो है वो रेजोल्यूशन उसकी कम रिकॉर्डिंग हो ताकि जो है स्पेस बढ़ जाए आपकी। ये है इसकी बेहतरीन एग्जांपल। H.265 में क्या होता था कि हम क्वालिटी को इतना लूज नहीं करते, लेकिन जो है क्या होता है जब आप फेस इमेज या कोई नंबर प्लेट गाड़ी की लेते हैं तो इस तरह से हल्की ब्लरनेस नजर आती है उसमें। वो क्यों आती है? कि वो कंप्रेस्ड इमेज होती है, ठीक है। अब क्या बैंडविड्थ तो हमने H.265 में भी कम कर ली थी, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम लूज कर रहे थे टारगेट, क्योंकि H.265 फुल इमेज को इनकोड करता है। ये दरख्त, ये आपको जो ये एरिया नजर है ये भी इनकोड हो रहा है, एनिमल्स भी इनकोड हो रहे हैं, ये जो येलो कलर का जो इसका जो घास वाली जगह वो भी सारी इनकोड हो रही है, घास भी इनकोड हो रही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा सीन H.265 में कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से हम टारगेट जो था हमारा वो लूज कर गए। एआई कोडिंग में ऐसा नहीं होगा। एआई कोडिंग में क्या है कि जो आपकी जो पत्ते हैं, दरख्त है, वो सीन का जो बैकग्राउंड है वो जो है आपका कंप्रोमाइजिंग इमेज में चला जाएगा, और जो टारगेट है ह्यूमन वो जो है फुल बिट रेट के ऊपर सामने आएगा, ठीक है। कितनी अच्छी बात होगी हमारे लिए। इसी तरह गाड़ी की एग्जांपल ले लें, ठीक है। गाड़ी की जब आप नंबर प्लेट देखते तो आपको हल्की फुल्की ब्लरनेस नजर आती थी, ठीक है। हल्की फुल्की से मुराद है, मैं हाई रेजोल्यूशन कैमरे की बात कर रहा हूँ और मोटराइज जूम वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल जूम की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो मेक इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, ये पुल को भी इनकोड कर रहा है, पानी, ब्रिज, रोड, जो भी चीजें हैं इस सीन के अंदर पूरी कंप्रोमाइज हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ गाड़ी को जो है वो फुल बिट रेट पे रिकॉर्ड करेगा और बाकी चीजें जो स्टैटिक है सीन के अंदर उनको ये जो है लेस कंप्रेशन पे ले जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी रिकॉर्डिंग मजीद बढ़ जाएगी, ड्रामेटिकली गिर जाएगी। आपके H.265 से भी मजीद हम 50% नीचे तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सीन में सिर्फ रिकॉर्ड ही ह्यूमन और व्हीकल को कर रहे हैं तो उसको अगर इनकोड करेंगे तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान और इजी हो जाएगा, ठीक है। टू वे टॉक, ये हमारा जो है टू वे टॉक का जो टॉपिक है ये कोई नया नहीं है। टू वे टॉक आईपी में आप फेमिलियर थे कि आपके पास बिल्ट इन माइक वाला और जो स्पीकर वाले जैसे आईमूव सीरीज है, या हमारे पास जो आईपी कैमराज के जो स्टैंडर्ड कैमराज है जिसके अंदर अलग से पोर्ट्स दी हुई होती है एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की, एक्सटर्नल माइक लगाने की, ठीक है। ये नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अब क्या होगा कि एनालॉग में बिल्ट इन माइक वाले कैमरे तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहे थे, जो कि हमारा ऑलरेडी ह्यूज एडवांटेज था। अब सुना है कि कंपेटिटर भी लेके आ रहे हैं, और लेकिन उसमें कंपेटिटर में ये होगा कि कंपेटिटर आपको कहेगा कि जो आपके कैमरा, आपका जो डीवीआर लगा हुआ वो भी चेंज होगा, कैमरे भी चेंज होंगे, हमारा डीवीआर चेंज नहीं होगा, हमारा सिर्फ कैमरा चेंज होगा। और टू वे टॉक आप कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कैमरास जो चल रहे होंगे वो भी चलते रहेंगे, और माइक और स्पीकर वाला जो कैमरा लगाएंगे उस पर टू वे टॉक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टू वे टॉक जो है बहुत अच्छा फंक्शन है,
अच्छा फंक्शन किस लिहाज से है कि इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि आपके कंट्रोल रूम वाला जो है बात कर सकते हैं इंट्रूडर के साथ या ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कोई मैसेज, ठीक है, टू वे टॉक के लिए आप वार्निंग कर सकते हो किसी को, ठीक है। तो योर कंट्रोल रूम, योर ऑपरेटर विल बी इन मोर वेल कंट्रोल, ठीक है। और दूसरा ये कि एडवांटेज क्या होगा कि इसमें फुल एविडेंस आपका पास ये होता था कि अगर माइक वाले कैमरा आप नहीं लगाते तो क्या होता है, कोई लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अब वो कोई मान नहीं रहा कि किसका कसूर था। अब रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा है लड़ाई हो रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किसने शुरू किया, शुरुआत किसने किया, किसने किसको बुरा भला किया या गालियां दी है, ठीक है। अब ऑडियो वाला लगा होगा तो हम उससे रिकॉर्डिंग में जो है ऑडियो से जज कर सकते हैं, एटलीस्ट क्लू ले सकते हैं कि किसकी गलती है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप रियल टाइम में देख रहे हैं ये सीन तो आप ये भी तो कह सकते हैं ओए ओए लड़ो नहीं तो ये आपके पास टू वे ऑडियो का जो है फायदा होगा, ठीक है। आप जो है इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके पास जो है टेबल पे माइक रखो, जैसे एक अच्छा प्रोफेशनल कंट्रोल रूम इन्वायरमेंट होता है, आपका एनालॉग हो चाहे वो आईपीओ, दोनों में ये जो है सिनेरियोज जो है हम सूटेबल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि जो है आप सबको पता है कि जो है धावा ने एचडी ओवर कोएक्सियल टेक्नोलॉजी में लीड किया, ठीक है। उसके बाद हम ही थे जो सबसे पहले एचडीसीवीआई में जो है ऑडियो ओवर कोएक्स लेके आए, जिसमें माइक वाले कैमरास की बात हो गई। उसके बाद हम 4K यूएचडी कैमरास लेके आ गए इंडस्ट्री में, ठीक है, और वो भी एनालॉग टेक्नोलॉजी में, और अब क्या रियल टाइम में, ठीक है। उसके बाद एआई फंक्शंस ले आए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब जो है क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि हम जो है वो माइक और स्पीकर वाले कैमरे भी अब लेके आ रहे हैं मार्केट के लिए। तो यहाँ पर तालियां तो बनती हैं बॉस, ठीक है ये हमारा आज का सेशन था। इसमें अब आप मुझसे माइक पर आके सवाल पूछ सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव ऑडियो क्वालिटी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक जो होता है कि इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कैमराज हैं, जो हमारे 1200 TL-A हो या 1200 EMP-A हो, इनकी माइक्स बहुत जो है ना सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर आप आइडियल हाइट इसकी मुझसे पूछिए तो जो है ये आप जो है ना 10 से 12 फुट पे लगाएंगे अगर, और इसका जो एरिया रेडियस में अगर कवरेज देखें सर्कुलर, तो ये जो है अगर आप सेंटर ऑफ एनी रूम लगाते हैं तो ये जो है आपका 5 स्क्वायर फीट जो है वो कवर, सॉरी स्क्वायर फीट ही होगा ना, स्क्वायर मीटर, 5 स्क्वायर मीटर का रूम जो है इजिली जो है सेंटर में अगर लगा हो आइडियल पोजीशन पे तो ये कवर कर सकता है, एक चीज। दूसरी ये, क्योंकि ये सेंसिटिव माइक है, क्योंकि ये एनालॉग है ना, इसके गेन वगैरह कंट्रोल का मैंने एक ऑप्शन बता दिया कि अब जो हमारे जो नए फर्मवेयर हैं उसमें आप ऑडियो गेन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो जो है क्या करेगा, आपको वो जो वॉल्यूम होता है उसका बटन की तरह आपके पास आ जाएगा डिस्प्ले के ऑप्शन में, आप उसको 50, 100, 80 तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी मजीद अच्छा अगर आप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारी एक सीरीज है फाइटर सीरीज। फाइटर सीरीज कौन सी? 2000 सीरीज के कैमरास। 2000, अब मुझे अब ये आइडिया नहीं है कि हमारे पास पाकिस्तान में स्टॉक में कौन से अवेलेबल है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 6 और 8 मेगापिक्सल तक फाइटर सीरीज के कैमरास अवेलेबल है, जिनके अंदर हमारे पास जो कैमरे के अंदर जो बिल्ट इन माइक है वो डैक टेक्नोलॉजी है, डिजिटल ऑडियो कन्वर्जन के तौर पे इसके अंदर जो है ना हमने चिपसेट लगाई है, ताकि जो है ना आपका नॉइज सप्रेशन अच्छे से अच्छा हो जाए, ठीक है। तो दूसरा ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। फर्स्ट जो आपका जो अभी एग्जिस्टिंग है उसके लिए जो है ना कोशिश करें कि पोजीशनिंग आइडियल होनी चाहिए। हाँ, ऑडियो जब भी आप एनालॉग की आउटडोर में लगाएंगे तो आप कुछ ना कुछ सराउंडिंग की जो वॉइसेस हैं वो आपको इनॉय कर सकती हैं, आपको इनॉइंग लग सकती हैं, जैसे हमिंग है, बर्ड्स हैं, जैसे इस तरह की चीजें जो वो इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि माइक सेंसिटिव है वो, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना चैलेंजिंग है आउटडोर में। इंडोर में आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई और सवाल हो किसी का? हाउ टू क्लियर पिक्चर इन प्लेबैक। ओके, पिक्चर इन प्लेबैक ये तो अजीबो गरीब सा सवाल है, लेकिन इसका मैं जवाब यूं दूंगा कि अगर आपका जो ना डीवीआर की प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होगी
अगर आप 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर सही होगा तो आपको ये वाले इश्यूज नहीं आने चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं ना नेटिव रेजोल्यूशन की, वो कस्टमर एंड पे तो नहीं समझ आती। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि नेटिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। नेटिव रेजोल्यूशन हमेशा याद रखें फुल रेजोल्यूशन से कम होती है, ठीक है। तो इस चीज का अगर ख्याल रखें और प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त ही अगर आप कंफर्म कर लें कि जी मैं ये सोल्यूशन लगाने जा रहा हूँ 4 मेगापिक्सल का। मुझे जो है ना बहुत लोग कहते थे कि जो है ना हमारे 4 मेगापिक्सल वाले डीवीआर कौन से हैं, तो 4K L डैश जो X वाली सीरीज है या जो I2 वाली सीरीज है, इसके अंदर 4 मेगापिक्सल जो है 15 FPS पे चल सकता है, ठीक है। तो बार बार आपको जो है ना एक सेम क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। आपको जो है ना खुद इतनी ग्रिप अब हो जानी चाहिए। जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए अरेंज करते हैं, उसमें यही हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग यही होती है कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, और ताकि जो है ना हमारे पास जो है ना, अगर ये चीज आप जो है ना प्रोजेक्ट जीतने और इम्प्लीमेंट करने के बाद करेंगे ना मुझसे डिस्कस, तो हो सकता है मैं पॉसिबल कोई सोल्यूशन ना निकाल सकूं उस चीज का। लेकिन अगर आप मेरे पास पहले आएंगे तो हो सकता है मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर दूं कि भाई ये इश्यूज आएंगे आपको, अगर आपने स्टिल लगाने हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस देख लें, ठीक है। अच्छा, आउटडोर और इंडोर कैमरा में सेम फंक्शन है क्या? हाँ जी, सारे फंक्शन सेम होते हैं सर। फंक्शन दोनों दोनों कैमराज में सेम होते हैं। इवन दो कि अब माइक वाले कैमराज भी अवेलेबल है, आप स्पीकर वाले भी इंशाल्लाह जल्द हमारे पास। अभी इसका जो है ना पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है स्पीकर वाले, तो मुझे जो है ना फौरन फ्रिक्वेंटली ना भेज दीजिएगा क्यूरीज कि मुझे स्पीकर वाले कहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आएंगे तो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट करता रहता हूँ व्हाट्सएप और जो यूट्यूब है और फेसबुक के थ्रू, तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि आउटडोर और इंडोर में फंक्शन सेम कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे एज इट इज होते हैं। जो आपको बुलेट में चाहिए वो आपको डूम में भी अवेलेबल होगा। डूम ये होता है कि इंडोर में जरा खूबसूरती आ जाती है इंस्टॉलेशन में, सीलिंग के ऊपर जरा अच्छा लगता है, ठीक है। और जो है बुलेट जो है आउटडोर में या पोल माउंट हो या जो है वॉल माउंट हो तो उसमें जरा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी के हवाले से कोई फर्क नहीं होता दोनों में, ठीक है। इसके अलावा कोई किसी का सवाल हो जो? Okay. Why the price is different of 8 megapixel analog camera and IP cameras? ये सर कमर्शियल से रिलेटेड सवाल है, इसका मैं जवाब क्या दूं आपको? आपको मैं जानता हूं और जवाब मैं नाम मैं इस वजह से नहीं ले रहा कि हाँ। अच्छा, ये मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। अब लोग सवाल करते हैं कि आईपी में भी 8 मेगापिक्सल अवेलेबल है और एनालॉग में भी 8 मेगापिक्सल अवेलेबल है, तो मैं क्यों लगाऊं 8 मेगापिक्सल एनालॉग की बजाय आईपी क्यों ना ले लूं? फर्स्ट थिंग तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आईपी और एनालॉग में इटसेल्फ क्या फर्क है। क्या फर्क होता है वैसे, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने वैसे 12 ट्रेनिंग्स में आप लोगों को समझाया हुआ है, बताया हुआ है। सबसे पहली चीज, एनालॉग क्यों लगाएं और वो क्यों लगाएं, आईपी क्यों लगाएं? आईपी मजीद सिक्योर होता है, मतलब कि आपकी, अगर मैं एग्जांपल मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ, अल्फाज ये है मेरे कि जो है ना कैट 6 केबल को कट लगाएं, कट लगा के ज्वाइंट बनाए, ठीक है, वहां पर कनेक्टर बनाए और अपने लैपटॉप के साथ लगाएं। स्टिल आपसे पूछेगा भाई कौन हो, यूजर नेम पासवर्ड दो। एनालॉग में ऐसा नहीं होता। एनालॉग चूज हम कैसे करते हैं कि एनालॉग में आपका हर कैमरे के अंदर ये होता है ऑप्शन कि जो है वो डीवीआर के साथ अटैच होता है, ठीक है। डीवीआर के साथ अटैच होता है, जो बीएनसी को हम या केबल को दरमियान से काटे, वहां पे ज्वाइंट बनाए और जो है वहां पर उसको किसी और डीवीआर की तरफ ले जाए, तो वो फौरन आपको जो है व्यू दिखा देगा। तो प्राइवेसी आपकी खत्म हो गई, सिक्योरिटी खत्म हो गई, ठीक है। डीवीआर की इटसेल्फ सिक्योरिटी है, लेकिन एनालॉग कैमरे की इटसेल्फ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। पहला फर्क, ठीक है। दूसरा फर्क क्या होता है एनालॉग और आईपी में? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। आपका जो 16 कैमरों का 32 कैमरों का जो सोल्यूशन है बीएनसी वाला, जो कोएक्सियल केबल वाला, उसमें ये होता है ना कि आपकी 32 के 32 कैमरों की केबल आगे टर्मिनेट होगी कहां पर? डीवीआर पे। आईपी में ऐसा नहीं होता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्विच लगा देते हैं, उधर से एक केबल ले आते हैं, तो झमगट्टा जो बनता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जो है नहीं बनता, ठीक है। दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क क्या होता है कि जो हमारी जो चिपसेट्स होती हैं, सेंसर्स होते हैं, इनमें भी बड़ा फर्क होता है, ठीक है। इनकी जो इनकोडिंग होती है, अच्छा एनालॉग कैमरे के अंदर इनकोडर नहीं लगा होता, मतलब कि कैमरा एनालॉग वाला कभी भी H.265 या H.264 नहीं हो सकता।
डीवीआर जो उसको कंप्रेशन करवाएगा वही इसकी कंप्रेशन काउंट होगी। कैमरे की कोई इटसेल्फ इनकोडिंग नहीं होती, तो कैमरे के अंदर इनकोडिंग चिपसेट नहीं होती। आईपी कैमरे में इनकोडिंग चिपसेट भी होती है, इंटेलिजेंट चिपसेट भी हो सकती है, क्योंकि कैमरा आईपी में फेस रिकग्निशन वाला कैमरा भी हो सकता है, एनालॉग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर चिपसेट लगी होती है, उसका खर्चा जरा अलग होता है, तो प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ जाती है तो फिर हम थोड़ा सा सेंसर भी अच्छा वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब था, यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ जानी चाहिए। प्राइस के ऊपर मैं बात इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि ये कमर्शियल का इशू है, ठीक है। और कोई किसी का सवाल हो इंटरेस्टिंग, कोई किसी का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे तो माइक पर आके कर सकते हैं आप लोग। IP camera is better than analog 8 megapixel. How I define this comparison to my client? It is you कि आप किस तरह से उसको कन्विंस करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप IP कैमरा 8 मेगापिक्सल लगाए, थोड़े से पैसे बचे ना लेकिन नहीं, आपका सवाल एक हद तक इस तरह से अगर इस सेंस में देखा जाए कि जो है ना किस तरह से कन्विंस करना है कि IP या एनालॉग, वही तीन चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है, और सोल्यूशन में कैमरे कितने हैं ये भी डिपेंड करता है ना, कि अगर वो 100 कैमरे लगाना चाहता है तो फिर तो एनालॉग में नहीं जाएगा वो कभी भी। क्यों? उसकी वजह केबलिंग, इतने 100 केबलें आएंगी आपके कंट्रोल रूम के अंदर। आपको पता है कंट्रोल रूम में जब मैस हो जाता है केबलिंग का और उसकी ट्रेसिंग और ये वो सारे मेंटेनेंस कॉस्ट, आईपी की मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस देन एनालॉग की मेंटेनेंस, क्योंकि एनालॉग में जो है ना केबल ने खराब जब होना है तो पूरी केबल ही चेंज होनी है, ठीक है। तो आपका जो है ना पावर सप्लाई उड़ जाएगी। अब जो है आईपी में क्या है कि टीओई बेस्ड है कैमरास, स्विच बेस्ड हैं, ठीक है। तो उसमें जो है केबल आप रिप्लेस कर देंगे या स्विच रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एनालॉग में जो है अगर कोई मसला आता है तो पूरे की पूरी डिवाइस चेंज होती है, ठीक है। ये तो एक हो गया मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको जब ब्रीफ करना है तो आपको सारे पॉइंट्स ब्रीफ करने हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद आपका जो केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, सिक्योरिटी, ठीक है। ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे नजदीक प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए जो है ना प्रोजेक्ट या जो काम कर रहे हैं आप, कस्टमर की एप्लीकेशन को एप्लीकेशन आपने आपको इम्प्रोवाइज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो आप लोगों को इजाजत है, आप सैटरडे एंजॉय कर सकते हैं जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम बात करेंगे किसी इंटरेस्टिंग मजीद टॉपिक पे, मैं अभी वो डिसाइड करूंगा कल बैठ के, ठीक है। किसी का कोई और सवाल हो तो माइक पे भी पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इट डजंट मैटर। हाँ, एक काम कीजिएगा जो है ना आप चैट बॉक्स में सारे लोग जो है अपना नाम स्लैश अपनी कंपनी का नाम और जो है वो सिटी, ये तीन चीजें तो टाइप करके जरा भेज दें ताकि जो है ना मैं मेरे पास जो है ना चैट बॉक्स में आ जाएगा। और डोंट वरी, ये जो है ना आपकी जो चैट है वो पब्लिक नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास ही आ रही है, ठीक है, डोंट वरी।